اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس اسرائیل اور ایران کو تحمل کی رسمی تلقین کے ساتھ بغیر نتیجہ ملتوی ہو گیا۔ دوران اجلاس اسرائیلی اور ایرانی مندوب ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کرتے رہے۔ روس نے اسرائیل کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کی تو امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے اسے رکوا دیا۔ G7 ملکوں نے بھی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کانگریس سے کہا وہ اسرائیل کو $14 ارب امداد کا بل فوری منظور کرے۔ اسرائیل خطے میں مزید کشیدگی سے گریز کرے، کشیدگی بڑھی تو بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ امریکی صدر نے اسرائیل کو واضح پیغام دے دیا۔ نیتن یاہو کو اپنے پیغام میں کہا، ایرانی حملوں کو ناکام بنا کر اسرائیل نے جنگ جیت لی، اب اس سے باہر نکلے اور تحمل کا مظاہرہ کرے۔ اس سے پہلے بھی امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر واضح کر دیا تھا کہ اگر اسرائیل نے ایران کے خلاف جوابی کارروائی کی تو وہ اکیلا ہی جواب دے گا، امریکہ اس میں مداخلت سے گریز کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب، ترکی، مصر اور اردن کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اینٹونی بلنکن نے ٹیلی فونک گفتگو میں اپنے ہم منصبوں سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا امریکہ خطے میں کشیدگی کا خواہاں نہیں لیکن اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گا۔ مصری وزیر خارجہ نے غزہ میں جنگ بندی اور فلسطینیوں کی امداد بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ اس سے پہلے امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے بھی اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ خالد بن سلمان کو ٹیلی فون کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی بدلتی صورتحال پر سعودی ہم منصب سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ اسرائیل پر حملے کے بعد خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ غزہ کی پٹی میں بڑھتی کشیدگی پر بھی گفتگو کی۔ اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ ایرانی حملے میں سب سے بڑے ایئر بیس کو نقصان پہنچا ہے۔ 3 رن وے اور 1 امریکی طیارہ شدید متاثر ہوا۔ اسرائیلی جنگی کابینہ نے ایران کے خلاف جوابی کارروائی پر اتفاق کر لیا، لیکن کارروائی کے وقت اور اس کی شدت پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ اسرائیل کو ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل اور ڈرونز مار گرانا بہت مہنگا پڑا۔ ایران کا حملہ روکنے کی کوشش میں اسرائیل کو $1 ارب 35 کروڑ سے زیادہ کے اخراجات برداشت کرنا پڑے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ڈرون حملہ ناکام بنانے والے ایک ایرو میزائل کی قیمت $35 لاکھ اور فضائی حملہ ناکام بنانے والے میجک وان میزائل کی قیمت $10 لاکھ ہے۔ حملے کو ناکام بنانے والے طیاروں کا خرچ بھی اس رقم میں شامل ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کی سربراہی میں سعودی وفد آج 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے گا۔ وفد میں سعودی وزیر پانی و زراعت، وزیر صنعت اور معدنی وسائل شامل ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بتانا ہے سرمایہ کاری کے نائب وزیر سعودی خصوصی کمیٹی کے سربراہ بھی پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وزارت توانائی اور سعودی فنڈ برائے عمومی سرمایہ کاری کے سینئر حکام بھی وفد میں شامل ہوں گے۔ سعودی وفد کی صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور ہم منصب وزراء سے ملاقاتیں ہوں گی۔ وفد کی SIFC کی ایپکس کمیٹی سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ دورے کا مقصد 2 طرفہ تعاون کو بڑھانا، اقتصادی شراکت داری کو مثبت تحریک دینا ہے۔ IMF اور عالمی بینک کا سالانہ اجلاس آج سے واشنگٹن میں شروع ہوگا۔ وزیر خزانہ کی سربراہی میں پاکستانی وفد شرکت کے لیے واشنگٹن پہنچ گیا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، MD IMF، صدر ورلڈ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں اور امریکی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان نے نئے قرض پروگرام کے لیے تحریری درخواست تیار کر لی۔ IMF کو نئے قرض پروگرام کے لیے درخواست دی جائے گی۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے نئے قرض کے لیے مذاکرات طویل اور مشکل ہو سکتے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی سربراہ کا کہنا تھا، پاکستان IMF سے نیا قرض لینے کا خواہش مند ہے، لیکن ابھی پاکستان میں بہت سے مسائل حل طلب ہیں۔ پاکستان میں ٹیکس کے حوالے سے زیادہ شفاف ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں بارشوں کا نیا اور دھواں سپیل جاری ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی دریا بے قابو ہو گئے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کئی علاقے ڈوب گئے۔ مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کے باعث سڑکیں بند ہو گئیں۔ نظام زندگی تہس نہس ہو گیا۔ بلوچستان میں بارشوں سے متاثرہ اضلاع میں آج اور کل سکول بند رہیں گے۔ چترال میں 4 روز سے جاری بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری سے شاہراہیں بند ہے۔ اپر اور لوئر چترال میں مواصلاتی رابطے منقطع ہونے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید بتائیں گے سید نذیر حسین۔ چترال کے طول و عرض میں 4 دنوں سے مسلسل تیز بارشوں اور بالائی علاقوں میں برف باری کے نتیجے تمام شاہراہیں گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بدستور بند تھے۔
अपर और लोअर चतराल के मुख्तलिफ देहात में ईद के छुट्टियों पर आए हुए हजरात सड़कों की बंदिश की वजह से अपने अपने गाँव में फंस कर रह गए हैं। ज़िली इंतज़ामिया अपर और लोअर चतराल ने मौसमी हालात के पेश नज़र सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों को 17 अप्रैल तक बंद रहने की अहकामात जारी किए हैं। इस वक्त चतराल के शहरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। जी, बन्नू में 2 रोज से जारी बारिश की वजह से शाहराहों पर पानी जमा है, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी है। हमारे नुमाइंदे एहसान खटक इस वक्त बन्नू DI खान रोड पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ बन्नू DI खान रोड, जो मेन शहरा से इस शहरा से बन्नू कराची तक जो है वो ट्रांसपोर्ट है। रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों अफराद इस रोड पर सफ़र करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो चुका है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे कि ये सिलसिला कब से जारी है। जो बारिश नहीं हुआ था उसी दिन से यही रोड बंद है और हम रोज़ाना देखते हैं, हम दुकानदारी भी नहीं कर सकते, हाल का पूछने वाला कोई नहीं। हम आपकी तवसत से यही उस लोगों को जो हमारे आप नुमाइंदे हैं, MNA साहब और MPA साहब और मेयर साहब, अल्लाह के वास्ते इस पर कोई रहम करके हमें इस मुसीबत से छुड़ाए। लोगों का यही मुतालबा है कि इस रोड की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए और इस रोड की तामीर किया जाए। जी, बानी PTI और बुशरा बीबी की निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समात। काबर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी की तरफ से जूनियर वकील अदालत में पेश हुए। समात 1 बजे तक मुलतवी करने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया। रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, 1 बजे आएंगे, तब तक केस मुलतवी कर दें। सेशन जज शाहरुख अर्जमन ने कहा, अगर आज वो अदालती वक्त के दौरान नहीं आए तो फैसला कर देंगे। इससे पहले जूनियर वकील की इस्तदा पर समात 11:30 बजे तक मुलतवी की गई थी। वकील सफाई सलमान अकरम, राजा और उस्मान गिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ईद गुजर गई, सुप्रीम कोर्ट में हमारे भी केसेस होते हैं, आज की कार्रवाई कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा बना लें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के 4 मुकदमात में फवाद चौधरी की 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से भी रोक दिया है। अदालत ने आइंदा समात पर पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। KP असम्बली में मखसूस नशस्त पर अरकान से हल्फ न लेने का केस जल्द समात के लिए मुकर्रर किया जाए। दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, इस तरह के केसेस पहले ही 18 अप्रैल को समात के लिए मुकर्रर हैं। अभी तो सिंगल बेंच है, इसमें कोई ऑर्डर तो नहीं कर सकते। 2 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। अगर आप जवाब जमा करना चाहते हैं तो कर लें, 2 रुकनी बेंच इसको सुनेगा। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में NFC अवार्ड पर अमल दरामद की पहली शशमाही रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर कानून इलेक्शन कमीशन की सालाना रिपोर्ट 2022 पेश करेंगे। भारत की आबी जाहरियत पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। भारत ने दरियाए रावी पर शाहपुर कुंडी बैराज तामीर किया है। इजलास में मुल्क भर में यूरिया खाद की कमी से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहादत के 45 साल बाद भी कब्र में आराम करते हुए हुकूमतें बनाते और गिराते हैं। आज पीपल्स पार्टी की 2 सूबों में हुकूमतें हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब। कहा, आज भी कुछ सियासतदान PNA पार्ट 2 बनाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की कम अक्ली की वजह से मुल्क गरीब है, वरना पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में भुट्टो शहीद की बरसी के जलसे से खिताब। सदर जरदारी ने कहा, हम हमेशा लड़ते रहे तो अवाम पिसते हैं। सियासत में एक कदम आगे कभी एक कदम पीछे हटना पड़ता है। सबसे कहता हूँ, पाकिस्तान के लिए मिलकर बैठे, लड़ाई से अवाम और मुल्क का नुकसान होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में जलसों का ऐलान कर दिया। 21 तारीख के बाद पंजाब में PTI के जलसों का आगाज होगा। जलसों के लिए पंजाब की क़यादत पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई। कमेटी जलसों के लिए हिकमत अमली तरतीब देगी। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कमेटी में शामिल अरकान के नामों का ऐलान कर दिया। कमेटी में रेहाना डार, मेहरबानो कुरैशी, जरताज गुल, सिमाबिया ताहिर, कवल शोजब, हाफिज हामिद रजा, मुनी सलाही, ताहिर सादिक,
शेख वकास अकरम, मलिक आमिर डोगर, सलमान अकरम राजा, जुल्फी बुखारी समेत 26 अरकान शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग ने JUI की अक़लियती मखसूस नशिस्त को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि KP असम्बली में JUI और नून लीग की 7 जनरल नशिस्तें हैं। अगर नशिस्तें बराबर हों तो अक़लियती मखसूस नशिस्त पर टॉस होता है। इलेक्शन कमीशन ने टॉस के बगैर ही मखसूस नशिस्त JUI को अलॉट कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं से कालादम करार दें। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। ईद गुजरने के बावजूद कीमतों में कमी ना आ सकी। मुर्गी का गोश्त 850 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। अफजल परवेज की रिपोर्ट में देखिए। कराची में पोल्ट्री फार्म माफिया बेलगाम हो गई। ईद के बाद भी मुर्गी के गोश्त की कीमतों को कंट्रोल न किया जा सका। शहर में मुर्गी का गोश्त 850 रुपए किलो और कहीं 900 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। गरीबों के लिए तो समझ लें कि बहुत ज्यादा जो है महंगाई हो गई है। हुकूमत तो नाम का कोई चीज ही नहीं है। हुकूमत क्या है, कोई बैलेंस ही नहीं है। दाल नहीं खा सकता, मुर्गी क्या खाएगा 800-850 रुपए की। सरकारी रेट पर मिलने वाली मुर्गी सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद नजर आती है। प्राइस कंट्रोल वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं? चिकन है वो अब 700 कहीं 800 इन बिटवीन चल रहा है। खाना तो है ना, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खाना तो खिलाना है ना हमको। मुर्गी के बढ़ते हुए गोश्त की कीमतें सुनकर शहरी हैरान और परेशान नजर आते हैं। जिला इंतजामिया का मुनाफाखोरों के खिलाफ भी ऑपरेशन कामयाब न हो सका। आज भी शहर भर में मुर्गी 850 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अफजल परवेज, ARY न्यूज़ कराची। हुकूमत पंजाब की हिदायत के बाद लाहौर के कुछ इलाकों में रोटी और नान कम कीमत पर दस्तियाब है। हम बहुत सारी दुकानें अब भी महंगे दामों नान और रोटी फरोख्त कर रही हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं अपनी नुमाइंदा सिद्रा ग़ियास से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नान शॉप पे मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं नान बाई एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गिल साहब। गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन कल जारी किया गया था कि रोटी जो है वो 16 रुपये उसका रेट मुकर्रर किया गया है, जबकि नान जो है वो 20 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। क्या वजह है जो अभी तक नान और रोटी की कीमत को कम नहीं किया जा सका? 20 रुपये की रोटी का नोटिफिकेशन जब हुआ था उस वक्त 2200 रुपये का थैला था और 2200 से अब कम रेट क्या हुआ है? और दूसरी बात यह है कि उस वक्त थोड़ी बिजली मजीद सस्ती थी, उनके कंट्रोल में फाइन नहीं है। तो मुझे आज तक ये लॉजिक समझ नहीं आई कि नान की कीमत वो कैसे तय करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो हमारे साथ बैठ के बात तो करे। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि किसी स्टेक होल्डर से पूछे बगैर आप एक नोटिफिकेशन करते हैं। करीब दुकानें बंद नजर आएंगी। सदर नान बाई एसोसिएशन का कहना था जब तक उनको चीजें सस्ती नहीं मिलेंगी वो गवर्नमेंट के रेट पर नान और रोटी को नहीं सेल करेंगे। जी, ईद उल फितर पर खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर सयाहों का ज़बरदस्त रश रहा। महकमा सयाहत और खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक ईद की 5 दिनों की छुट्टियों में 5,83,000 से ज़ायद सयाहों ने सयाहती मकामात का रुख किया, जबकि गुज़श्ता साल ईद के 5 दिनों में 1,25,000 सयाह आए थे। यूं गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल सयाहों की तादाद कई गुना ज़्यादा रही। सबसे ज़्यादा 2,37,000 से ज़ायद सयाह गलियात आए। मालम जब्बार 1,52,000, जबकि वादी कुमराट में 92,000 सयाह पहुंचे। नारान कागान में 77,000, वादी चित्राल में 24,000 से ज्यादा सयाह लुत्फानंदोज हुए। पेशावर हाई कोर्ट में 7 गुमशुदा अफराद की तलाश से मुतालिक केस की समाअत हुई। बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान अली से। बताइए उस्मान। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में 7 अफराद के केस की समाअत हुई है और दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत को बताया कि जब दरख्वास्त गुजार जेल से रिहा हुए तो उस वक्त उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया है, जिस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क किए हैं कि जमानत पर रिहा होने के बाद किस कानून के तहत जो है एक बंदे को आप उठाते हैं। पेशावर हाई कोर्ट जो है वो ये तय कर चुकी है असद फैसल केस में कि एक दफा एक मुलजिम जो है अगर एक केस में वो गिरफ्तार है तो जो तरह मुकदमात है उसमें वो गिरफ्तार तस्वुर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो अदालती फैसले है उस पर अमल दरामद न हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए हैं कि अदालत के अहकाम पर अमल दरामद जो है उसको हम यकीनी बनाएंगे। अदालत ने ये भी कहा है कि ऐसे मुकदमात में दर्ज फैसले जो है उस पर अमल दरामद जो है वो मुतल्लिका हुकाम जो है उनको भी यकीनी बनाएंगे और इसको हम यकीनी बनाएंगे कि अदालती जो अहकाम है उस पर खिलाफ वर्जी जो है वो न हो। अदालत ने जो है उसके मुतल्लिका हुकाम से जो है रिपोर्ट तलब कर दिया है 14 दिन में कि वो इस बारे से रिपोर्ट जो है वो अदालत ने जमा करा दी। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान।
ये ट्रेंड बन गया है कि निगरां हुकूमत जब भी आती है आईजी से हेड मुहर्रर तक को तब्दील कर दिया जाता है। यही तब्दीली पूरा मैकेनिज्म खराब कर देती है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं क्राइम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है। आईजी ने बताया सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले फेज में 1300 कैमरे लग रहे हैं। कनकोट में वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार की ज़ेर सदारत हुआ है इजलास और यहाँ लाड़काना कच्चे के इलाके में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बात करेंगे अली हसन मलिक से। जी अली हसन आगाह कीजिए। जी सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार, DIG सिंध गुलाम नबी मेमन समेत मीरपुर खास के DIG, नवाब शाह के DIG, लाड़काना के DIG और शक्कर के DIG समेत मुख्तलिफ SSP के जो अजला के हैं वो शिरकत कर रहे हैं इजलास में। इजलास साल अभी जारी है। उसके बाद मीडिया से बातचीत की जाएगी कि आइंदा लाएअमल क्या होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि होम मिनिस्टर ने 2000 मजीद नफरी SSP कश्मीर को देने का कहा है कि आप 2000 मजीद नफरी देंगे, आप कच्चे का ऑपरेशन तेज करें। साल मीटिंग जारी है, उसके बाद ब्रीफिंग दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अली हसन मलिक। वफाक और सूबों के इश्तराक से खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की टेक्निकल तालीम के शोबे में कोशिशें। पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफे के साथ ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि तालीमी निज़ाम बैनुल अक़वामी मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक हो। पाकिस्तान में इस वक्त 26.2 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं और 10 साल से कम उम्र के 40% बच्चे तालीम से महरूम हैं। इस ज़मन में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ ताउन के लिए मुतहरिक है और मुल्क भर में इंसानी वसाइल की बरामद के लिए कोशा हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने वफाकी और सूबाई सतह पर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर तालीमी पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। ये काविशें न सिर्फ आलमी सतह पर पाकिस्तान की लेबर फोर्स के मयार को बेहतर बनाएंगी बल्कि आलमी अफरादी क़ुव्वत में नमायां तौर पर हिस्सा डालने के लिए मुआविन साबित होंगी। और PTI उम्मीदवारों ने इस्लामाबाद की तीनों नशस्तों 46, 47 और 48 के नताइज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिए हैं। नताइज आमिर मुगल, शुएब शाहीन और अली बुखारी ने चैलेंज किए हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 8 फरवरी को इंतखाबात के नताइज में तब्दीली और धांधली की गई है। नून लीग के कामयाब करार दिए गए अरकान को डी नोटिफाई किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासी बुनियादों पर भर्तियों की फहरिस्त तलब कर ली गई। ज़राए का कहना है चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुलाजमीन का रिकॉर्ड मुरतब करने का काम शुरू कर दिया गया। मुलाजमीन की मौजूदा पोस्टिंग, ओहदा और तनख्वाह की तफसीलात का जायजा लिया जाएगा। तालीमी असनाद को भी चेक कराया जाएगा। लॉबिंग या सिफारशी कल्चर की हौसला शिकनी की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने होटल में रिपोर्ट कर दिया। टीम के हेड कोच हज़र महमूद आज इस्लामाबाद पहुंचकर टीम को ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम आज शाम से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 बुध को रावलपिंडी में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह कोहनी की तकलीफ की तशखीस के लिए इंग्लैंड रवाना। आज ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर एडम वॉट से अपॉइंटमेंट है। एहसान के इलाज के अखराजात PCB बर्दाश्त करेगा। एहसानुल्लाह इंजरी के बायस PSL 9 भी नहीं खेल सके थे। खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। साबिक ओपनिंग बैटर नासिर जमशेद ने अपने किए पर माफी मांग ली। सोशल मीडिया पर एक बयान में लिखा, जो अपने करियर के साथ किया उस पर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, अपने किए पर शर्मिंदा हूं। नासिर जमशेद ने अपनी बेटी की ट्रेनिंग की वीडियो भी पोस्ट की और लिखा कि अपना टैलेंट अपनी बेटी को मुंतकिल करने की कोशिश करूंगा। साबिक ओपनर पर 2017 में स्पॉट फिक्सिंग पर 10 साल की पाबंदी आयद की गई थी।